Hello students. Now the topic that you have to learn, that is nitrogen fixation. Before starting this topic, let us recapitulate what you have learned in your previous classes. What knowledge that you have about this nitrogen fixation, right? From your previous classes that we have to discuss. You have learned about the bacterium rhizobium in the classes 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Leguminous plants means which type of plants you can assume that are pulses, right? Any pulses that you imagine, that is of leguminous plants. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship, right? So in leguminous plant, the root nodules of leguminous plant, which type of bacteria is found? Rhizobium bacteria is found, right? And that rhizobium bacteria has the symbiotic relationship with the roots of leguminous plants. Now the another important thing that you have to learn, that is symbiotic relationship. What is symbiotic relationship? I think you have learned the meaning of this also, but let us recapitulate. Symbiotic relationship is nothing but when both of the organisms are helpful to each other, right? In any way both are helping each other, then that type of relationship is called symbiotic relationship. Means here rhizobium bacteria get something from the root nodules of leguminous plants, and the root nodules of leguminous plants get something from rhizobium bacteria. In that way both are helping each other, then this relation is symbiotic. दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, right? Symbiotic. Okay. राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिलेगा? फूड, एनर्जी दैट इट गेट फ्रॉम रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्या मिलेगा? उसे मिलेगा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. ओके. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. जब बारिश होती है, राइट, जब बिजली गिरती है तो उस टाइम पे बहुत हीट एनर्जी रिलीज होती है. एक्सट्रीम हीट इज रिलीज, एंड दैट condition, in that heat, we can say that atmosphere nitrogen get mixed in form of nitrate mixed with soil. Okay, so fixation of nitrogen takes place from atmosphere to soil. Through which action? Through action of lightning. So two ways. One is rhizobium bacteria, second one is lightning. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. How much amount of nitrogen is there in an atmosphere? You know that? That is 78%. And that's a wonder, right? You may wonder how that amount of nitrogen in atmosphere remains constant. How? It means through lightning mixed with soil and through bacteria that is also mixed with soil. Then how amount of nitrogen in atmosphere remains constant? To understand this, you have to learn about nitrogen cycle. Okay, how this nitrogen, what we can say, that get back to the atmosphere from the soil, that you have to learn in this particular topic, nitrogen cycle. So before focusing on this theory, to understand this theory in better way, focus on this diagram, nitrogen cycle. Okay, as you know that in atmosphere 78% nitrogen gas is there, right? And what is the importance of nitrogen in plant and in animal body? That is, nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms, such as part of proteins, chlorophyll in plant body, nucleic acid एंड इन विटामिन्स, राइट. सो ये सब कुछ अगर बनेगा, मतलब प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, वो बनने के लिए बेसिक कंस्टिट्यूएंट और एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट कौन सा चाहिए? तो वो चाहिए नाइट्रोजन.
अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोटीन नहीं बन सकता, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता, विटामिन्स नहीं बन सकता, प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल भी नहीं बन सकता, राइट। तो ये सब के लिए चाहिए नाइट्रोजन। पर ये नाइट्रोजन है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में है। पर चाहिए किसको? प्लांट और एनिमल्स को चाहिए। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये मुसीबत हो गई, चाहिए तो प्लांट और एनिमल्स को चाहिए, लेकिन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से हम ये नाइट्रोजन नहीं ले सकते, राइट। नॉट प्लांट्स एंड नॉट एनिमल्स, कोई भी ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकती। तो कैसे लेंगे? सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। तो compounds of nitrogen क्या होंगे? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो मतलब NO2 एंड NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये सब क्या है? ये याद नहीं रहेगा तो चलेगा, पर इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, right? And that compounds of nitrogen get mixed with the soil. Once nitrogen is converted into this usable compounds, सिर्फ नाइट्रोजन था तो क्या था? वो यूजेबल नहीं था। पर जब नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब NO2 NO3 में कन्वर्ट हो गया with soil, then it is usable compounds. It can be utilized by the plants from the soil through their root system. Now how root will take this nitrate compound? So that nitrate compound will dissolve in water that you add in the soil. First dissolved in water, and when the roots of the plant absorb water, this nitrogenous compound absorbed in the plant body. Okay, next, nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds, right? मतलब एक बार प्लांट बॉडी ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रोजनस कंपाउंड को, तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे, क्लोरोफिल बनाने में वो नाइट्रोजन को यूज़ कर लेंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाने में यूज़ कर लेंगे, विटामिन्स, और बहुत सारी जगह पे ये नाइट्रोजन जो है वो यूज़फुल होता है इन प्लांट बॉडी। और अगर नाइट्रोजन है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई तो क्या होगा कि भाई उससे जो प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि फ्रूट का प्लांट है तो फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, राइट, यील्ड ज़्यादा होगी। और अगर वेजिटेबल्स का प्लांट है, वेजिटेबल का क्रॉप है, तो वो वेजिटेबल्स जो ग्रो होंगे वो भी बहुत अच्छी और हेल्दी वेजिटेबल्स ग्रो होंगे, राइट। अच्छे क्रॉप, अच्छे वेजिटेबल्स मतलब अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा यील्ड। अच्छी यील्ड का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा पैसे, राइट। सो बेस्ट वे एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स। नाउ फर्दर आगे क्या होता है? ये प्लांट प्रोटीन बनने के बाद और अदर कंपाउंड जैसे क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन का आगे क्या होता है? सो व्हेन एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड, मतलब जैसे हम प्लांट बॉडी को खाएंगे, प्लांट नहीं, प्लांट से हमें जो चीज़ें मिलेगी जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम स्टेम भी खा लेते हैं कभी कभी कोई प्लांट का, कभी रूट्स खाते हैं, राइट। और वो सब हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि कौन से प्लांट के हम रूट लेते हैं, रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लीव्स खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सीड्स खाते हैं। तो बस वो सारी जगह पे क्या है? सीड्स में, रूट्स में, प्लांट्स में, स्टेम्स में, सब क्या है? तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है और प्रोटीन्स है। तो अगर हम खाएंगे वो चीज़ तो वो प्रोटीन और नाइट्रोजिनस कंपाउंड किसकी बॉडी में आ जाएगा? फिर वो एनिमल की बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में। ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, राइट। तो हमारी बॉडी में आएगा, वैसे दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी जाएगा, राइट। और जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, वेजिटेबल हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा लेते हैं, तो हर्बीवोरस में तो नाइट्रोजन आ गया ना, तो अब नाइट्रोजन वाला हर्बीवोरस में आ गया, तो कार्निवोरस जब हर्बीवोरस को खा जाएगा तो वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है वो कार्निवरस एनिमल्स तक भी पहुंच जाएगा। हाँ, जिसको क्वेश्चन हो कि भाई मैडम कार्निवरस एनिमल्स जो है वो तो प्लांट नहीं खाते, उनके बॉडी में नाइट्रोजन और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कैसे जाएंगे, प्रोटीन कैसे जाएगा? तो भाई ऐसे जाएगा, हर्बीवोरस प्लांट खाएगा और हर्बीवोरस को कार्निवरस खा जाएंगे। गेटिंग इट और नॉट? नाउ नेक्स्ट फर्दर, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert this nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again। मतलब
कोई प्लांट बॉडी मर जाती है या फिर एनिमल मर जाता है या उनका कोई एक्सक्रीटा जो है वो जब सॉइल में फिर से गिरेगा तो बैक्टीरिया एंड फंगाई होते हैं कुछ सॉइल में, वो क्या करेंगे, वो ये प्लांट और एनिमल बॉडी को उसमें इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है उसको व्हाट वी कैन से दैट ब्रेक डाउन करेंगे, डीकम्पोज करेंगे। ब्रेक डाउन का मतलब ही होता है डीकम्पोज, और डीकम्पोज करके सिंपलर कंपाउंड में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो सिंपल कंपाउंड जो है वो नाइट्रेट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। सो दैट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन अगेन यूज्ड बाय some new plants, right? Roots of some new plants will take that nitrogenous compound, again form protein, nitrogenous compound, दूसरे एनिमल उसे खाएंगे, फिर मरेंगे, तो फिर से सॉइल में कुछ बैक्टीरिया और फंगे उसे कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड में। तो ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। नाउ सर्टेन अदर बैक्टीरिया, राइट, वो क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट पार्ट ऑफ देम, certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. मतलब कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड के ऊपर जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया अटैक करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया अटैक करते हैं कि भाई वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता हो। उस तरह से वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। उस तरह से टोटल जो 78% नाइट्रोजन है, नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, वो कांस्टेंट रहता है। ओके, थैंक यू सो मच।